Good morning, viewers. You're now watching Hornbill TV. Congress Rajya Sabha MP Pramod Tiwari criticized Prime Minister Narendra Modi over his appeal regarding foreign travel, alleging hypocrisy over the Prime Minister's own international visits. He attacked the government over the recent fuel price as well, claiming it was burdening common people. प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं विदेश न जाएं, पर स्वयं अवार्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए उन देशों में जा रहे हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक दिन तो 2 गाड़ियों पे चल के रील बनवाते और उसके बाद 8,500 के हवाई जहाज से जिससे ट्रम्प साहब चलते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उससे विदेश भ्रमण कर रहे हैं। तो वापस लिया जाना। देखिए, ये तो ट्रेलर है। मैंने कहा था जिस दिन 3 रुपए बढ़ाया था, अब और बढ़ा दिए, अभी देखिएगा और बढ़ाएंगे। लेकिन एक चीज की भी जांच होनी चाहिए कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यहाँ थे, क्या ये बाहर भेजे गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, कोई जरूरत नहीं है पेट्रोल के दाम बढ़ाने की, डीजल के दाम बढ़ाने की। जब 48 रुपए तक गया था, 45 रुपए तक गया, तो जो दाम बढ़ा के लगभग 30 लाख करोड़ इन कंपनियों ने कमाया है, मोदी जी के मित्रों ने, उनको उनकी जिम्मेदारी है कि उसे रखे। 140 145 डॉलर पर बैरल कांग्रेस के जमाने में गया था, पर हमने तो 60-70 रुपए के ऊपर नहीं जाने दिया। अब कौन सी मजबूरी के 100 रुपए के ऊपर जा रहा है? अभी तो 148 149 डॉलर पर बैरल पहुंचा नहीं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये जनता की जेब पर डाका है। Upendra Dwivedi stressed the urgent need for India to rapidly scale indigenous defense innovation and reduce dependence on foreign supply chains in emerging technology, highlighting AI, cyber, quantum systems, space and advanced materials as key areas of future warfare. Alpha, accelerated innovation as part of Prime Minister's clarion call of JAY, that is jointness, Atmanirbharta and innovation. In today's conflicts, the cycle from lab to battlefield has compressed from decades to months. Innovation that cannot scale is innovation that arrives too late. The pipeline from idea to prototype exists. The unfinished agenda is to move from experimentation to enterprise scale impact in AI, cyber, quantum, autonomous system, space, and advanced materials that modern warfare demands. Dual-use research and development ecosystem has to be synergistically upgraded with clear government support to private players besides academia and government research establishments. The fourth of SMART is R, Romeo, that is resilience. The most sophisticated form of strategic vulnerability today is not military inferiority. It is dependence on foreign supply chains, critical minerals, and digital infrastructure. Resilience means systematically eliminating those dependencies not as an economic preference, but as a security imperative. It involves strategic partnership with like-minded nations, as also encourage government strategic partnership with level 1 industries for sustainable production lines. And mind you, at this point of time, India is also looking at startups, MSMEs, and others to come out with low-cost, high-technology solutions. The last one is Tango, T, technology primacy. Whoever commands the technology stack in the next decade will tend to command the conflict outcomes. We must not merely absorb emerging technologies. We must indigenize, operationalize, and lead in them. As they say, the follower pays the price, the leader sets the terms. I am hopeful that our troika of industry, academia, military will deliver the desired first mover advantage and ensure technology disruptions must not become strategic vulnerability. As I draw to a close, let me touch upon what are the anchors that must hold this smart power architecture in place, especially when the winds shift, as they always do. It rests on 4 pillars of conviction: Atmanirbharta, capability built from within, leverage earned, no strategic dependency accepted; Atmaraksha, security as a whole of nation, whole of domain enterprise; Atma Sahyog, the troika of academia, industry, and military moving in rhythm; Atma Nishchay, strategic autonomy as a living practice,
Decisions taken on a national merit, free from alliance compulsion, anchored in Vasudhaiva Kutumbakam, engaging all with equal ease and captured by none. So we have a framework, we have anchors. What we need is the will to move fast, together, and without hesitation. It's not the need for more frameworks, but for the urgency to act within ones we have at the speed this moment demands. History does not wait for those who are ready. It rewards those who are already moving. Bharat is moving. The question is, are we moving fast enough? And I must quote Atal Bihari Vajpayee ji, peace is not absence of strength. Peace is the presence of capability, confidence, and resolve. Thank you and Jai Hind. Animal rights activist Gauri Mulekhi welcomed the Supreme Court's decision refusing to modify directions on stray dogs, calling it a balanced judgment. She said the court placed major emphasis on implementing animal birth control rules, including setting up centers in every district, ensuring trained veterinarians and staffs, and mandating compliance reports to the High Court and Supreme Court. I think it is a balanced judgment. Way back earlier in November, the court had asked for dogs to be summarily picked up and removed and kept in shelters, whatever. Here today, the most stress was given to animal birth control rules. It has been directed that there has to be an animal birth control center in every district. There has to be trained manpower, trained veterinarians, as well as procedures to be followed, which have been prescribed by Animal Welfare Board of India. Reporting has to be done. Compliance reports have to be given to High Courts and Supreme Court. So the focus on animal birth control rules is very, very welcome, and the rest has been left to the state authorities as to how they want to sort of remove dogs from sensitive areas, depending on feasibility, etc. And compliance reports have now to be given to the High Courts. And later to by 17 November. The Supreme Court also highlighted the issue, the cases of dog bites. So how this judgment is going to improve that situation? Yeah, so Supreme Court rightly observed that bites, which have been happening a lot, according to the newspaper reports that the Supreme Court cited, can only be sustainably resolved by a robust animal birth control program. It cannot be, and this was specifically said by Justice Sandeep Mehta today, that reactionary or, knee-jerk reactions to critical situations will not, in a long term, solve the situation, and that situation can be made better by only implementing the animal birth control program. The Supreme Court also said about the accident happened on national highways due to the stray animals. Ma'am, how do you see that direction to NHI officials and other states? I think that is totally a win-win situation. It's a progressive direction because not only do animals get hurt, but people also get hurt. So national highways to have proper, guardrails on both sides, to remove dairies from, this is not something that the court had said, but surely taking precautions to prevent cattle from coming on the national highways will be in the best interests of all parties. So do you see that the ABC framework will be implemented in a far better way after this judgment? I am totally hoping now with these very strong directions of the Honorable Supreme Court, the animal birth control rules will be implemented across the country. We need more people to work with the state governments so that a scientifically managed and well monitored program takes place and corners are not cut so that neither is welfare of animals compromised nor is public safety compromised. Sanjay Rawat criticized the hike in petrol and diesel prices sarcastically, targeting BJP supporters and accusing the ruling party of ignoring the burden on common people. He said rising fuel prices were expected and mocked the government's politics over public issues. अब तो डॉलर पूरा देश का रुपया तो पूरा लुढ़क गया, अभी 100 पार हो गया ना। हाँ, 5 रुपया बढ़ गया वापस। तो उसमें नई बात क्या है? ये तो होने वाला ही था। जिसको महंगाई मखा रही है, मार रही है, ये अगर भाजपा के लोग हैं तो जय श्री राम बोलो, 10 रुपया कम हो जाएगा। यही तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्र है ना, जय श्री राम बोलो सब कुछ मिल जाएगा। तो जिनको लगता है कि बहुत महंगाई हो गई, अब घर कैसा चलेगा, चूल्हा कैसा जलेगा, और मैंने तो बीजेपी को वोट दिया है, तो आराम से बैठो सब लोग एक साथ और मोदी जी के घर के सामने जाकर
या मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के घर के सामने जाकर जय श्री राम के नारे दीजिए, सब कुछ सस्ता हो जाएगा। यही भारतीय जनता पार्टी का महंगाई कम करने का मंत्र और तंत्र है। कर लीजिए। हमारे जैसे लोग हैं, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे, हम आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। एक जमाना था जनता महंगाई के खिलाफ सड़क पर उतरती थी, खास करके बीजेपी, सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी, हाँ आते थे ना सड़क पर सिलेंडर लेके, प्याज लेके। अब कहाँ गए वो लोग? अब महंगाई का मार जो है वो राष्ट्रभक्ति है, आपको सहन करना चाहिए, चाहे लोग मरे या शमशान में जाए। सर, अमेरिका ने 1 महीने का और एक्सटेंशन दिया है। मेहरबानी है, इंडिया को रशिया से मेहरबानी है, अमेरिका की बहुत बड़ी मेहरबानी है इस देश पर। मोदी जी के ऊपर मेहरबानी है, अडानी के ऊपर मेहरबानी है, सबके ऊपर मेहरबानी है। मैं हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूँ। भाई मेहरबानी है आपकी हमारे देश पर। सर, अमित शाह ने कहा है नक्सल फ्री हो गया है, भारत नक्सल फ्री हो गया है। अमित शाह ने कहा महंगाई फ्री करो, भारत महंगाई फ्री करो। महंगाई बढ़ेगी तो वापस नक्सलवाद बढ़ेगा, गरीबी बढ़ेगी तो नक्सलवाद बढ़ेगा। नक्सलवाद गरीबी की देन है। और मोदी जी कहते हैं कि देश वापस गरीब होएगा, जनता वापस गरीब होगी तो वापस नक्सलवाद बढ़ेगा। तो महंगाई कम करो, गरीबी कम करो, नक्सलवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। सर, नीट पे सवाल उठाया आपने, कहा कि सब आरएसएस के लोग। नीट और क्या सीटी ना, हाँ। यूनिवर्सिटीज, वाइस चांसलर्स, यूपीएससी, एमपीएससी, जहां जहां शैक्षणिक संस्थाएं हैं वहां सब आरएसएस ने अपने लोग बिठाए हैं, बीजेपी ने अपने लोग बिठाई है। तो जो पेपर लीक का मामला है उसमें जिम्मेदार कौन है? यही लोग हैं, बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। मैंने आज पढ़ा है कि स्टैंडिंग कमेटी जो है एजुकेशन एचआरडी की, उसने समन्स किया है नीट के चीफ को, प्रदीप जोशी को। प्रदीप जोशी कौन है? आरएसएस का आदमी है, आरएसएस का स्वयंसेवक है, इसीलिए तो उसकी वहाँ अपॉइंटमेंट हो गई है। महाराष्ट्र से है वो। देवेंद्र जी को मालूम है ये सब क्या गौड़ बंगाल है। ये पूरी बीजेपी ये पेपर लीक के पीछे है, अपने अपने लोगों को ऊपर चढ़ाने के लिए, हाँ परसेंटेज बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ा खेल हो गया और सभी लोग हैं बीजेपी के, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की है। हमारे बच्चों का भविष्य उद्ध्वस्त कर दिया है लोगों ने, ये बीजेपी ने, आरएसएस ने। प्रायश्चित लेना चाहिए लोगों ने, मोहन राव भागवत जी ने प्रायश्चित लेना चाहिए। सब उनके लोग हैं ये, उनके विचारधारा के लोग हैं ये। चलो Political analyst Sangeet Kumar Ragi claimed that the case against Gautam Adani and Sagar Adani was part of a larger corporate battle aimed at damaging the Adani Group's credibility and India's growth story. He urged and argued that there was no evidence of bribery, questioned the jurisdiction of the case and alleged that both international forces and rival corporate interests were attempting to weaken the company. देखिए, पहले भी एक केस नहीं बनता था। मुझे लगता था कि ये कॉरपोरेट वॉर के कारण ये सारी चीज़ें हुई थी गौतम अडानी के खिलाफ में। और जो उनका अटॉर्नी ने जो प्ली किया है वो कहा कि न तो आपका जुरिस्डिक्शन बनता था और न ही केस बनता है, यानी कि न तो इसमें सब्सटेंस है और न ही आपका जुरिस्डिक्शन बनता है। ये दो बातें की थी और इन दोनों बातों को जो है जस्टिस डिपार्टमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया है और वहाँ सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन जो है इसने भी एक्सेप्ट। आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि, और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अडानी के खिलाफ कई केसेस चल रहे हैं, दो केसेस चल रहे थे। एक था जिसमें चार्जेज क्या थे? चार्जेज ये थे कि अडानी ने भारत में सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को लेने के लिए रिश्वत दिए और ये बात अमेरिकन इन्वेस्टर्स को नहीं बताया। अमेरिका में जो इन्वेस्टर्स थे वो $3 बिलियन इन्वेस्ट किया अडानी के प्रोजेक्ट में। ये फंड रेजिंग जिसे आप कहते हैं, तो ये ऐसे ही है कि मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर लिया है भारत के अंदर, आप अमेरिका हैं, हमने अमेरिका के फंड रेजर्स के बीच में $3 बिलियन का फंड रेज किया
और हमने आपको बताया नहीं कि भारत में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए हमने इतने घूस दिए हैं, ठीक है, आपके दर्शकों की जानकारी के लिए। अब भारत के अंदर न तो घूस पकड़ा गया है, भारत में अडानी ग्रुप ने रिश्वत दिया हो इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, इसका कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, और इसका कोई स्वाभाविक है कि रिजल्ट नहीं है। अमेरिका की एजेंसियां कहती है कि घूस दिया गया है, उनके पास भी प्रमाण नहीं है, तो एक केस बनता ही नहीं था। इसीलिए आपने देखा होगा कि अडानी के जो वकील हैं उन्होंने ये तर्क दिया कि जो है वो केस सब्सटेंस है ही नहीं इस केस में, दूसरा जुरिस्डिक्शन ही नहीं, घटना यहां पर घटी है, आप अमेरिका में उसको ये कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार यहां पर ये केस बनता है, बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि यहां जुरिस्डिक्शन नहीं बनता है। तो मुझे बार बार ये लगता है कि ये केस जो है वो एक भारत के अंदर जो कॉरपोरेट वॉर है, जो अडानी ग्रुप को नीचा दिखाना चाहता हो, आपने देखा होगा, नीचा दिखाना चाहता हो और अडानी ग्रुप को के जो कॉरपोरेट क्रेडिबिलिटी है उसको खत्म करना चाहता हो, कम करना चाहता हो, ताकि वो दुनिया के देशों में फंड रेज नहीं कर सके, तो कंपनी को भी डैमेज करने का इसके पीछे ये था। लेकिन इसमें यदि ऐसा होता तो ये भारत के एक कॉरपोरेट के मात नहीं था, ये भारत की ग्रोथ स्टोरी को डैमेज करने का था। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसमें विदेशी ताकतें भी इन्वॉल्व थी और भारत के कुछ कॉरपोरेट घराने भी इसमें इन्वॉल्व थे, जो अडानी को कहीं ना कहीं डैमेज करना चाहते थे, उनके कॉरपोरेट इंटरेस्ट को डैमेज करना चाहते थे और उससे जो है वो भारत के इंटरेस्ट को डैमेज करना जो है वो विदेशी एजेंसियों का है। तो इन दोनों का मुझे तो हैरानी होती है। राहुल गांधी अब क्या करेंगे? राहुल गांधी तो रोज अडानी और मजेदार बात है, राहुल गांधी ने कहा कि भाई जो भारत का जो ट्रेड डील हुआ है ना, अभी तो खैर ट्रेड डील साइन नहीं हुआ है, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी ट्रेड डील की, उसको लेकर के राहुल गांधी ने कहा है कि भाई अमेरिका के डील में ये एक शायद शर्त रही होगी। आप समझ रहे हैं? यानी कि कुछ भी बोल करके चले जाते हैं पॉलिटिशियंस। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस समझौते में कहीं भी स्वीकार नहीं किया गया है कि हमने कोई गलती की है, ठीक है। अडानी ग्रुप और सागर अडानी जो है, उन दोनों का ये स्टेटमेंट है कि हमने कोई स्वीकारोक्ति नहीं की कि हमने कोई गलती की है। ये तो केस एक हुआ। दूसरा एक केस और चल रहा था, 24 समथिंग मिलियन डॉलर का एक केस चल रहा था, और वो था कि अडानी ग्रुप ने ईरान पर तेल के प्रतिबंध के बावजूद भी खरीदा तेल, और किसी थर्ड ग्रुप के सहारे ये खरीदा, और जो ओमान के रास्ते से सप्लाई किया गया। इस पर भी जो है वो फैसला आ चुका है, ये भी केस अब बंद हो चुका है। तो मैं मानता हूं कि अडानी ग्रुप के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। उनकी कंपनी में जिन लोगों का विश्वास था, जो इन्वेस्टर्स थे, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है, शुभ संकेत है, और भारत के कॉरपोरेट के लिए बहुत ये अच्छे दिन की बात है। क्योंकि देखिए, मैं मानता हूं कि भारत का जब कॉरपोरेट बढ़ता है तो आप भी बढ़ते हैं, देश बढ़ता है, भारत का कॉरपोरेट ग्रोथ होता है। आज गूगल यदि बड़ा है, अमेजॉन बड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट बड़ा है, तभी तो अमेरिका का नाम आता है। यदि गूगल नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, एप्पल नहीं होते, तो क्या वहां की सरकारें इनको प्रमोट नहीं करती थी ना। वैसे ही हमारे गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे कॉरपोरेट घरानों को बाहर बढ़ने में मदद पहुंचाएं। आखिर वो आपके लिए फॉरेन करेंसी लाते हैं, आपके बिजनेस, उनका जब बिजनेस एम्पायर बढ़ता है तो आपकी धमक बढ़ती है,
कल जाकर के अडानी ग्रुप यदि पावर प्रोजेक्ट यदि ऑस्ट्रेलिया में करता है या किसी यूरोपीय देश में आता है तो कहा वो भारत की धमक नहीं दिखेगी, आपकी छाप नहीं दिखेगी। तो ये जो नैरेटिव इस देश में बनाया जा रहा था कांग्रेस पार्टी के द्वारा और खासकर राहुल गांधी के द्वारा, मुझे ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतों के आधार पर किया जाता है। अच्छा, सोलर प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा इस देश में दुनिया में किसकी धमक है? चाइना की धमक। भारत के अंदर यदि सोलर प्रोजेक्ट राइज करता है कोई कंपनी, इसमें टेक्नोलॉजी लेकर के आती है, बड़ी कंपनियां, लॉस किसको होगा? चाइना को होगा। तो क्या भारत की कांग्रेस पार्टी चाइना के लिए काम कर रही है? क्या राहुल गांधी और चाइना के भी आप बोलते हैं? ये बड़े सवाल हैं और इस पर देश को गंभीरता से सोचनी चाहिए कि हम अपने कॉरपोरेट को रोज रोज गालियां देकर के हम भारत का हित साध रहे हैं या भारत की ग्रोथ को बर्बाद कर रहे हैं। Advocate Vivek Sharma welcomed the Supreme Court's ruling on stray dogs, calling it a balanced and significant judgment focused on public safety and compliance by states and union territories. स्ट्रे डॉग्स का मैटर है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है जो न्यायपालिका का एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा जजमेंट है। मेनली जजमेंट को 3 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट जो पार्ट है वो रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन, जो एप्लीकेशन थी जजमेंट के रिगार्डिंग, जो पहला था उसके रिगार्डिंग दी हुई थी उसमें है। सेकेंड पार्ट में जो SOP है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके रिगार्डिंग है। और जो थर्ड पार्ट है वो स्पेसिफिकली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट कहूंगा क्योंकि उसमें कंप्लायंस बाय स्टेट्स एंड ड्यूटीज की बात की गई है। मेन बिंदु ये है तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ही ज्यादा, आर्टिकल 21 के अंतर्गत ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी गई है कि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, उन सबको एक राइट टू लाइफ है और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि वो बिना किसी फियर के सोसाइटी में, समाज में कहीं भी आ जा सके, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो, सड़कें हैं, रोड हो, पब्लिक प्लेसेज हो। तो एक तो ये है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है और यूटीज हैं, जो पिछले ऑर्डर्स थे कोर्ट के, उनको भी, और जो आज का ऑर्डर है उसका जो कॉम्प्लायंस है उसे इंश्योर करेंगी। और साथ में आज के जजमेंट में एक इम्पोर्टेंट चीज और है, जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स हैं और जो उनके कर्मचारी हैं, उन्हें एक प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते हैं, जो डॉग बाइट के केसेस को स्टॉप करने के लिए जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी और मेजर्स है उन्हें इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल FIR या कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह नहीं होगा। मतलब जिसे हम कहते हैं कि एक सामान्य प्रक्रिया के तहत। और बाकी जो आज के जजमेंट की कॉपी है वो जब पूरी अपलोड हो जाएगी तो उसके बाद आपको डिटेल बिंदु हम बताएं। का जो प्रॉब्लम है उसको कोर्ट ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है और क्या आदेश अथॉरिटीज को? हाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ है उसे एक इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट मानते हुए ये चीज इंश्योर करने की कोशिश की गई है, जिसमें आज के जजमेंट में आप लोगों ने सुना भी होगा कि देश के अलग अलग हिस्सों में ये बताया गया कि कहाँ कितने डॉग बाइट के केसेज हुए हैं। इवन पिछले साल में भी कई लाख केसेज डॉग बाइट के हुए हैं और इस साल भी आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो कई डिस्ट्रिक्ट में थाउजेंड्स ऑफ केसेज हैं, हंड्रेड्स ऑफ केसेज हैं डॉग बाइट के। तो सीधी सी बात निकल के यही आती है कि जो राइट टू लाइफ का हमारा फंडामेंटल वो है, राइट है, उससे किस तरह से इन स्पिरिट इंश्योर किया जाए, किस तरह से उसे लागू किया जाए ताकि जो हमारे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्कूल जाने वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो बिना किसी फियर के अपनी जगह पे जा सके। उन्हें ये नहीं हो कि हम 5-6 लोग एक साथ जाए, बच्चा है अकेला जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो वो सीधा जा सके, उसे कोई फियर ना हो कि 4-5 डॉग्स आएंगे और एकदम उस पर अटैक कर देंगे। तो एक चीज ये है कि सोसाइटी को बिना किसी फियर के लोग अपना काम कर सके, तो उस चीज को इंश्योर करने की कोशिश की गई है और एक बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत ही एक राइट डायरेक्शन में दिया हुआ जजमेंट है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अथॉरिटीज को क्या डायरेक्शन है के बारे में भी कहा है, डॉग्स को यूथेनेसिया देने? हाँ, वो जो ABC प्रोग्राम है उसे इम्प्लीमेंट करने की बात की गई और जितने भी मेजर्स थे जो आपने पुराने जजमेंट में जो 7/11 का था और जो अगस्त वाला था जजमेंट, तो उन जजमेंट्स में जो वो है मेजर्स उन्हें भी इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। आज के में भी कुछ हैं जो जब पूरा जजमेंट अपलोड हो जाएगा तो उसमें आप लोग भी देखेंगे। कहा है कि क्या इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ABC रूल्स, उसको कैसे हाँ, वो भी मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि ABC प्रोग्राम 2001 के बाद से ये था कि बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, लेकिन 2 डिकेड होने के बाद भी जब इसे एक कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं, चाहे उसमें राज्य सरकारें रही हो
या म्युनिसिपल अथॉरिटीज रही हो या जो भी इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटीज थी वो ठीक से उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई, तभी कहीं ना कहीं इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज लोगों के सामने आके खड़ी हुई है। तो उस प्रोग्राम को भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही ईमानदारी के साथ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और इसीलिए जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज के ऑफिसर्स है और या जो भी कंसल्ट ऑफिसर्स है, स्टेट्स के हों, यूटीज के हों, सेंटर के को कहीं के भी हों, तो उन सबको प्रोटेक्शन की बात भी की गई है कि अगर वो ये जो मेजर्स है इन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी इस तरह का, जैसे कई बार ऐसा होता है कि समाज में जाते हैं और कोई FIR उनके खिलाफ करने लगता है या कोई उन्हें परेशान करता है, तो वो चीजें ना हो। That's all for now. Thank you for watching Hornbill TV.